Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to another class of government schemes. In today's class, we are going to cover the very important schemes from the Ministry of Health and Family Welfare. And yes, from today we are starting the Ministry of Health and Family Welfare. The schemes, as you can see on your screen, are Ayushman Bharat Yojana and Rashtriya Aarogya Nidhi. These schemes obviously are very important for your upcoming NABARD grade एग्जामिनेशन और आयुष्मान भारत को आज हम इतनी डिटेल में पढ़ेंगे जितना आपने कभी नहीं पढ़ा होगा एंड यस दिस मच डिटेल इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. जितनी डिटेल में मैं आपको स्कीम्स करा रहा हूँ दोस्तों इतनी आपको जरूरत है एग्जाम के लिए. तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ ऑल गुड, इफ एवरीथिंग इज फाइन, सो दैट वी कैन क्विकली स्टार्ट द क्लास. जल्दी से बताइए. गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप एवरीथिंग इज फाइन. चलिए लेट्स स्टार्ट. शुड वी स्टार्ट? Please give me a thumbs up if I should start the class. And please listen to what I am teaching very carefully today because a lot of questions can be expected from these two schemes. और हर एग्जाम में इन दोनों स्कीम से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं. आयुष्मान भारत इज अ वेरी it is a landmark scheme of the government of India. All right. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग फर्स्ट द आयुष्मान भारत योजना. देखो इसके कुछ प्रोविजंस जो है वो हम सबको पता है. ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव वी ऑल नो. अंडर आयुष्मान भारत योजना द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू achieve the universal health coverage. The government intends to achieve the universal health coverage by providing the by providing the primary, secondary, and tertiary healthcare services at absolutely free of cost. At primary level, the government provides the services at without any cost, and at the secondary and tertiary level, the government provides a health insurance coverage of 5 lakh rupees per family per year. ठीक है, तो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये हम सब जानते हैं. To achieve the vision of universal health coverage by providing access to good quality healthcare services and reducing the financial burdens on the poor and the vulnerables, thereby achieving the SDG goal number 3. Right? तो आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है that Ayushman Bharat Yojana intends to achieve which sustainable development goal. So in that case the answer would be SDG 3 because that is SDG 3 क्या है? Good health and well-being. Good health and well-being. ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग. एंड डू रिमेंबर दैट दिस स्कीम इज अ रिक्रिस्टीन्ड फॉर्म ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम एंड इट हैड सबस्यूम्ड द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. इससे पहले एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलती थी, उस स्कीम को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया. राइट. It was launched in the year 2018 from Ranchi, Jharkhand, and Jharkhand was the first state where this scheme was implemented. Jharkhand was the first state where this scheme was implemented because of the obvious reason that it was launched from Ranchi. It is being implemented by National Health Authority. National Health Authority is the implementing agency, and National Health Authority is the implementing agency of all the Ayushman schemes like Ayushman Bharat Digital Missions, Ayushman Bharat Yojana, this one, and there is one more. I'm forgetting the name. राइट नाउ अब इसमें जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज है उसके ऊपर आ जाओ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माय डियर फ्रेंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम विच यू हैव नेवर हर्ड ऑफ एंड ये आपको करके जाना ही है. दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. ठीक है, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा और ये आपको करके जाना ही जाना है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो बेनिफिशियरीज जो है इसके अंदर, दीज आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया एंड द क्राइटेरिया आर डिफरेंट for the rural areas and for the urban areas. The criteria with which the beneficiaries are selected under this particular scheme differs in rural areas and urban areas. Clear? And rural areas के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें, so all the families which fulfill any of these 6 criteria are eligible to get the benefits. इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कोई फैमिली फुलफिल करती है then that family is eligible to get the benefits of Ayushman Bharat. और ये 6 कैटेगरीज, 6 क्राइटेरिया क्या है? They have only one room. The families having only one room with kacha walls and kacha roof. There is no adult member in the age group of 16 to 59. Households with no adult member between the age group of 16 to 59. Household with disabled member and no able-bodied adult member. SC/ST households are automatically, they are also the part of this 6 criteria. And landless household deriving a major part of their income from manual casual labor. इनमें से कोई भी एक अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, कोई भी रूरल हाउस होल्ड, then that family is eligible.
ठीक है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन ऑटोमेटिक इंक्लूजन क्राइटेरिया जिसमें बेनिफिशियरी की एलिजिबिलिटी को चेक भी नहीं किया जाएगा। इफ दे कम फ्रॉम एनी ऑफ दीज कैटेगरी देन दे आर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। और ये कौन से? हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर्स, डिस्टिट्यूट्स, लिविंग ऑन आर्म्स यानी कि बेगर्स, मैनुअल स्कैवेंजर फैमिलीज, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एंड लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर्स, ये सारे के सारे एलिजिबल है, ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। ठीक है, ये हो गया क्राइटेरिया फॉर द रूरल एरियाज। अब आ जाओ अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज में क्या है? फॉर अर्बन एरियाज देर आर 11 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज ऑफ विच द वर्कर्स आर एलिजिबल। अगर कोई फैमिली इन 11 ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में से किसी में भी फॉल करती है देन दैट फैमिली इज एलिजिबल फॉर आयुष्मान भारत। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं जी? 11 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज: रैग पिकर्स, बेगर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर की कैटेगरी में सारे आ गए, कॉबलर, हॉकर, अदर सर्विस प्रोवाइडर वर्किंग ऑन स्ट्रीट, सब्जी वाला एंड ऑल सारे। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर, इसके अंदर प्लम्बर है, मेजन है, लेबर है, पेंटर है, वेल्डर है, सिक्योरिटी गार्ड है, कूली है एंड अदर हेड लोड वर्कर। स्वीपर में सारे स्वीपर, सैनिटेशन वर्कर, माली, होम बेस्ड वर्कर या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स, आर्टिजन्स, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स, टेलर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, हेल्पर टू ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स, कार्ट पुलर, रिक्शा पुलर, शॉप वर्कर, असिस्टेंट, पियन इन स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, हेल्पर, डिलीवरी असिस्टेंट, अटेंडेंट, वेटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, असेंबलर, रिपेयर वर्कर एंड वॉशरमैन एंड चौकीदार। अब आप सोचेंगे सर क्या ये हमें सब कुछ याद करना है वर्ड टू वर्ड? नो, आप इनको एक दो बार पढ़ लोगे एंड इन द एग्जामिनेशन ऑब्वियसली व्हेन यू विल गेट द ऑप्शंस यू विल बी एबल टू रिकॉल, आराम से हो जाएगा। ये बहुत जनरल वर्ड्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड है या डिफिकल्ट कीवर्ड है। दीज आर वेरी जनरल वर्ड्स, दीज आर वेरी जनरल ऑक्यूपेशनल कैटेगरी। अगर आप इनको एक दो बार पढ़ लेंगे तो यू विल बी एबल टू रिकॉल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कि हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में माली लिखा हुआ आ जाता है तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने माली पढ़ा था, है ना? क्योंकि आप ये बहुत जनरल टर्म्स हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इसमें यही चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये है दैट इफ SC ST इफ हैव गुड जॉब आर दे एलिजिबल। देखो इसमें क्या है, SC ST अगर हाउस होल्ड एक भी क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है तो येस दे आर एलिजिबल। ठीक है, देखो SC ST का जो रिजर्वेशन होता है या जो भी बेनिफिट्स होता है ना, दैट इज नॉट इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन, दैट इज बेस्ड ऑन देयर कास्ट। ठीक है, जो कि जो SC ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है इन द पास्ट, बिफोर इंडिपेंडेंस, इनफैक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इज हैपनिंग टुडे आल्सो, तो उसको रीइंबर्स करने के लिए कह लो या फिर उसको थोड़ा सा मरहम पट्टी करने के लिए द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस। तो SC ST हाउस होल्ड्स येस दे आर एलिजिबल। ओके, अच्छा इसके अलावा कौन कौन इंक्लूडेड है? तो अर्बन एरियाज, रूरल एरिया समझ में आ गया। इसके अलावा ऑल द आशा वर्कर्स, ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स, ऑल आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड देयर फैमिलीज आर एलिजिबल। एंड वेरी रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपनड अप द आयुष्मान भारत योजना फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन who are of the age 70 years and above, irrespective of their income, इनकी इनकम कुछ भी हो, अगर सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर के हैं तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, और आप सबको याद होगा अभी हमने पढ़ा दैट दिस स्कीम, इसके अंदर आयुष्मान भारत योजना के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को सबस्यूम कर लिया गया था। सो ऑल द फैमिलीज विच वर एनरोल्ड अंडर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एज ऑफ 28 February 2018 आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये थी एलिजिबिलिटी, ये तो हो गए वो जो कि इंक्लूडेड है। अब कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी है। ठीक है, यू विल से कि भाई इतनी तो एलिजिबिलिटी क्यों पढ़ा रहे हो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। RBI में भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार एलिजिबिलिटी से आयुष्मान भारत की, एंड वी हैव ऑलरेडी वी ऑलरेडी हैड अ क्वेश्चन इन NABARD आल्सो। एक्सक्लूजन किस किस का है, कौन कौन एक्सक्लूडेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली? दोज हु ओन अ 2, 3 और 4 व्हीलर और अ मोटराइज्ड फिशिंग बोट, those who own mechanized farming equipment, those who have Kisan cards with a credit limit of 50,000, those who are employed by the government. Now again, जो अभी एक डाउट आया था, किनका डाउट आया था? नाइशांज, आई एम सॉरी, नेशाज का डाउट आया था। तो अगर वो SC ST हाउस होल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब है उसके पास, देन दैट SC ST हाउस होल्ड इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, दोज हु वर्क इन गवर्नमेंट मैनेज्ड नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस, those earning a monthly income above rupees 10,000,
those owning refrigerators and landlines, those with decent or solidly built houses, and those owning 5 acres or more of agricultural land. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? So these are the exclusion criteria. These are the नाइशा, ठीक है, these are the exclusion criteria. Alright, I hope this is clear. अब हम आते हैं दोस्तों इसके components पे. I hope eligibility criteria is clear. If yes, please give me a thumbs up for that. Now there are two components of this particular scheme. One is the health and wellness center, under which the government provides, under which the Ministry of Health and Family Welfare provides the primary health care to the beneficiaries. The primary health care to the beneficiaries. Under this component, the government targeted to create 1,50,000 health and wellness centers, which are now called as Ayushman Aarogya Mandirs, जिनको आज क्या बोला जाता है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर. ठीक है. By December 2022, it was targeted that the government will create 1,50,000 health and wellness centers. ठीक है. And the target was already achieved. And if I talk about today, more than 1,80,000 Ayushman Aarogya Mandirs are operationalized. ठीक है. The very first health and wellness center was inaugurated in बीजापुर in छत्तीसगढ़. बीजापुर छत्तीसगढ़ में सबसे पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया था अंडर दी आयुष्मान भारत योजना. Now these centers, as I already told you, provide comprehensive primary healthcare services. They cater to maternal and child health services as well as the non-communicable diseases. क्लियर हो गया? तो ये है दोस्तों पहला कंपोनेंट. दूसरा कंपोनेंट हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, which is the world's largest, yes, mind this word, world's largest government funded insurance scheme, under which the government provides 5 lakh rupees per family per year. Per family per year, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि देयर इज अ फैमिली ऑफ 5, ठीक है, और किसी एक मेंबर पे एक साल में 2 लाख रुपए खर्च हो गए. किसी एक मेंबर पे अनफॉर्चुनेटली कोई मेडिकल खर्चा आया, 2 लाख रुपए खर्च हो गए. तो नेक्स्ट ईयर इस फैमिली ऑफ 5 को फिर से ये रिन्यू हो जाएगा और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा. तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर. ठीक है. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर इन एम्पैनल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स. और याद रखना, पब्लिक हॉस्पिटल्स तो है ही, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो एम्पैनल्ड होंगे वहां पे भी आयुष्मान भारत बेनिफिशियरीज को 5 लाख तक का मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा फ्री में. ठीक है. एंड दिस ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली कैशलेस और ये कार्ड बेस्ड होता है. आयुष्मान भारत कार्ड दिखाइए और फ्री इलाज पाइए. ठीक है. And this is on a family floater basis, which means that it can be used by one or all members of the family, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया. ठीक है. It covers 3 days of pre-hospitalization and 15 days of post-hospitalization expenses. 3 day 3 दिन pre-hospitalization, 3 दिन post-hospitalization 15 दिन के expenses इसमें कवर होते हैं. There is no restriction on family size, age और gender, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में फैमिली साइज पे रेस्ट्रिक्शन था कि 5 मेंबर का फैमिली साइज होना चाहिए. तो उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया. तो फैमिली साइज, एज, जेंडर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस आर इंक्लूडेड अंडर द कवरेज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जो कि जनरल हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं होता. आप सबको पता होगा कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कभी कराया है तो अगर आप जिस दिन इंश्योरेंस कराते हैं उस दिन के 1 साल बाद या 2 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर होती है. बट अंडर आयुष्मान भारत योजना ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस आर कवर्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. ठीक है. अदर देन दैट, medical examination, surgery and procedures, medicines and consumables, ICU charges, diagnostic and lab test, everything is covered. सब कुछ covered है. Yeah. Now there is a 3-tier implementation model. ठीक है. इसका 3-tier implementation model है. ट्रस्ट मॉडल, इंश्योरेंस मॉडल एंड मिक्स्ड मॉडल. किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है इसकी, उसके बारे में बात करते हैं. तो ट्रस्ट मॉडल में क्या होता है? जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है, under the trust model, the state health authority directly implement the scheme. ठीक है. And it has the responsibility of reimbursing the insurance claims to the hospitals. It has the responsibility of reimbursing the insurance claims to the hospitals. So it is directly being maintained. जो ये ट्रस्ट होगा, एक ट्रस्ट बनाया जाता है. That trust is being maintained by state health authorities under the state governments, and everything with respect to this particular scheme is being managed by the state health authority. The second model is insurance model. Under this model, state health authority pay the premium to insurance company and insurance company does the claim settlement. ठीक है. समझ में आ गया? इंश्योरेंस मॉडल में क्या हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी सब कुछ करती है,
स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने क्या बोला कि ठीक है, विल पे यू द प्रीमियम, यू विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लेमिंग द सेटल डाउन ऑल द क्लेम्स, ठीक है। एंड देन वी हैव मिक्स्ड मॉडल जिसमें दोनों का रोल होता है, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी का भी होता है, इंश्योरेंस कंपनीज का भी होता है। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड मॉडल में द इंश्योरेंस कंपनी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटलिंग द क्लेम्स। ये क्या करते हैं, क्लेम सेटलमेंट का काम करते हैं, वाइल स्टेट हेल्थ अथॉरिटी क्या करता है, फंड्स को मेंटेन करने का काम करता है। समझ में आ गया? सो इन ट्रस्ट मॉडल everything is being done by state health authority. In the insurance model, everything is being done by the insurance companies. And in the mixed model, claim settlement is being done by the insurance company while the funds are being maintained by the state health authority. क्लियर हो गया ये वाला? समझ में आ गया सबको? बताओ। चलिए, now there is an Ayushman app for effective implementation of the scheme. There is a concept that is called as Ayushman Mitras. ठीक है, आयुष्मान मित्रास भी है। आयुष्मान मित्रास कौन है? दे आर द सर्टिफाइड फ्रंटलाइन हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ बेनिफिशियरी हु इंटेंड्स टू हैव द बेनिफिट्स ऑफ आयुष्मान भारत योजना, वो किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएगा। सो इन ऑल द इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स आयुष्मान मित्रास आर प्रेजेंट हु आर द फ्रंटलाइन हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स। दे सर्व एज द फर्स्ट contact point for the beneficiaries. Okay, and they help in processing the documents for beneficiary identification as well as the complete claim process along with the medical coordinator. जैसे आप सबने अगर देखा हो, आई डोंट नो, वैसे तो भगवान ना करे आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर आप कभी पहले हॉस्पिटल गए हैं तो आप देखेंगे इंश्योरेंस क्लेम के लिए अलग से कुछ लोग वहां पे बैठे होते हैं, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज और फ्रॉम दी हॉस्पिटल्स ऑल्सो। तो वैसे ही आयुष्मान मित्राज है, दे आर द फर्स्ट point of contact for the beneficiaries. If I am a Ayushman Bharat beneficiary and if I am visiting hospital for maybe some reason, if I have to file the claim, where would I go? How would I file the claim? So I would first visit the Ayushman Mitras which are present in all the empaneled hospital. They will tell me, they will guide me how can I claim the hospital bills. Okay, so these are called as what? Ayushman Mitras. नेक्स्ट आयुष्मान भारत फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये सब आपको मैंने पहले भी बताया दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द आयुष्मान भारत योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 70 years and above irrespective of their income, and this initiative aims to benefit approximately 4.5 crore families with 6 crore senior citizens. ठीक है, इसमें भी 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है, बट बेस्ट बात यह है कि मान लेते हैं कि देयर इज अ सीनियर सिटीजन A who is already, whose family is already a beneficiary of Ayushman Bharat. But if this person is 70 years and above, if this person is 70 years and above, right, then additional 5 lakh rupees of health insurance will be provided to this particular person, to this senior citizen. वो जो 5 लाख रुपए इसको पहले फैमिली जो इस फैमिली को जो 5 लाख रुपए मिल रहे थे, उसके एडिशनल 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन को मिलेगा, ठीक है। एंड ऐसे सीनियर सिटीजन्स who are already availing the benefits of CGHS, Central Government Health Scheme, ex-servicemen contributory health scheme, Ayushman, Centrally Armed Police Force scheme, they may either choose their existing scheme or opt for Ayushman Bharat Jan Aarogya Yojana. ठीक है, अब उनकी मर्जी है, या तो वो अपने CGHS, ESCH या फिर CAPF की स्कीम के साथ चले जाएं, या तो फिर जन आरोग्य योजना में एनरोल कर लें, ठीक है। And for these beneficiaries, for senior citizens, the government is creating separate Ayushman Vaya Vandana cards for identification. ठीक है दोस्तों, तो ये था आयुष्मान भारत योजना। आई होप दिस पर्टिकुलर स्कीम इज क्लियर एंड दिस इज द माइंडनॉर्म फॉर आयुष्मान भारत योजना। इसको आप डाउनलोड कर लेना और अच्छे से इससे रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्कीम की तरफ जिसका नाम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, ठीक है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि क्या है भाई? दिस स्कीम फर्स्ट ऑफ ऑल इज फॉर द बीपीएल फैमिलीज, is for the BPL families, and again under this particular scheme the government provides financial assistance to the BPL patients suffering from major life threatening diseases. समझ में आया? This scheme is for providing financial assistance to the below poverty line patients who suffer from the major life threatening diseases. Here, it was launched in the year 1997. अब आप बोलोगे how is it different from Ayushman Bharat? In Ayushman Bharat, there is no specific mention of major life-threatening diseases. All kind of hospitalization expenses are covered. However, under this scheme, only
द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। क्लियर हो गया? अब आप बोलोगे कि सर अगर कोई बीपीएल पेशेंट है तो वो तो ऑलरेडी आयुष्मान भारत का बेनिफिशियरी होगा, तो उसको तो वहां से 5 लाख का मिल ही जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए अगर आप देखो मैंने लिखा हुआ आगे, द फैमिलीज एनरोल्ड अंडर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, जो जन आरोग्य योजना के लोग हैं वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो एलिजिबल कौन है? ऑल बीपीएल फैमिलीज एक्सेप्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड देयर फैमिलीज। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वो होगा तो वो बीपीएल तो हो ही नहीं सकता, दैट इज वेरी ऑब्वियस। लाइट हाउस इज सेइंग ये वाली प्लेलिस्ट इनफ होगी क्या? हाँ जी बिल्कुल इनफ होगी। आपको कोई डाउट है क्या इस पे? और इसमें अभी बहुत कम स्कीम कवर हुई है बिकॉज मैं सिर्फ वही स्कीम्स करा रहा हूँ जो कि नाबार्ड के लिए ग्रेड ए के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक एग्जाम होगा मैं 60-70 स्कीम्स करा दूंगा। मेरे ख्याल से मैंने 20-25 स्कीम को ऑलरेडी करा दी है। आयुष मेरे को पता नहीं है कि कितनी स्कीम्स बाकी है यार, बिकॉज अभी मैंने काउंट नहीं करा है कि कितनी मैंने करा दी है कितनी बची है। आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क। यस, विल बी एफिशिएंट सफिशिएंट। चलो, मिनिस्ट्री दोनों की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मुझे इस पे कमेंट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके 3 कंपोनेंट्स है। ठीक है, एक कंपोनेंट का नाम इटसेल्फ इज राष्ट्रीय आरोग्य निधि। इट इज फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस रिलेटेड टू लिवर, किडनी, स्टमक। कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है उसके अंदर राष्ट्रीय आरोग्य निधि कंपोनेंट के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। कितना मिलता है भैया आगे बात करें। सेकंड कंपोनेंट इज हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड। ऑब्वियसली अंडर दिस कंपोनेंट the financial assistance is provided for patients diagnosed with cancer। और याद रखना एलिजिबिलिटी बीपीएल फैमिलीज ही होनी चाहिए और कोई नहीं चले। और तीसरा कंपोनेंट है स्कीम फॉर रेयर डिजीजेस अंडर विच द फाइनेंशियल एड इज प्रोवाइडेड फॉर बीपीएल पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम रेयर डिजीजेस। अगर कोई रेयर डिजीज से वो सफर कर रहा है बीपीएल पेशेंट, देन इन दैट केस स्कीम फॉर रेयर डिजीजेस के अंदर सपोर्ट मिलता है। अब थोड़ी सी चीजें यहाँ पे पेचीदा हो जाएंगी और डिफिकल्ट हो जाएंगी, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के वक्त फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे दिया जाता है? देखो ऐसा है कि अगर मान लो कि मैं एक बीपीएल पेशेंट हूँ एंड आई हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि एंड आई विल आई वुड विजिट टू अ हॉस्पिटल। अब उस समय कैसे होगा? जैसे आयुष्मान भारत में तो आयुष्मान भारत का कार्ड होता है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि में आई विल जस्ट टेल देम दैट आई एम अ बीपीएल पेशेंट। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे आएगा फिर उस समय एकदम से तुरंत? ऐसे आएगा कि गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ रिवॉल्विंग फंड ऑफ ₹1 करोड़ पर कंपोनेंट टू ऑल द हॉस्पिटल्स। हर हॉस्पिटल को, जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसको सरकार ने रिवॉल्विंग फंड दिया हुआ है ₹1 करोड़ का। रिवॉल्विंग फंड का मतलब क्या है? जो कि खत्म होने पे दोबारा से रिप्लेनिश हो जाएगा। ठीक है, देयर इज अ रिवॉल्विंग फंड ऑफ ₹1 करोड़ पर कंपोनेंट। पर कंपोनेंट ₹1 करोड़ सरकार ने दे रखा है। ठीक है, दिस रिवॉल्विंग फंड इज ₹2 करोड़ फॉर एम्स न्यू दिल्ली अंडर द आरएएन कंपोनेंट ओनली। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई बेनिफिशियरी गया, उसने बताया हम बीपीएल, बीपीएल कार्ड दिखाया उसने। ठीक है, और उसके इलाज में अगर पैसा लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है वो भी बताऊंगा। अगर उसके इलाज में पैसा लग रहा है तो दैट फंडिंग विल बी डन फ्रॉम दिस रिवॉल्विंग फंड। ठीक है, हॉस्पिटल्स बिकम एलिजिबल फॉर रिप्लेनिशमेंट 175% ऑफ रिवॉल्विंग फंड्स आर यूटिलाइज्ड। एंड अब जो ट्रीटमेंट मिलेगी वो कितने तक की मिलेगी? 5 लाख रुपए तक की मिलेगी। कितने तक की मिलेगी? 5 लाख रुपए तक की मिलेगी। आप कहोगे सर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, 5 लाख में अगर काम नहीं हुआ तो क्या होगा? उसके बाद क्या छोड़ देंगे उसको? छोड़ेंगे नहीं। 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट कैन बी अप्रूव्ड बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ दैट हॉस्पिटल। लेकिन अगर खर्चा उसके ऊपर जा रहा है, खर्चा अगर उसके ऊपर जा रहा है, द मैटर विल बी रेफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फ्रॉम वेयर द अप्रूवल विल कम फॉर द ट्रीटमेंट एक्सीडिंग ₹5 लाख। 5 लाख रुपए से अगर ट्रीटमेंट एक्सीड होगा तो उसके बाद मैटर जो है रेफर करना पड़ेगा टू द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड आफ्टर अप्रूवल कितना मैक्सिमम जा सकता है सर? 15 लाख रुपए तक जा सकता है। 15 लाख रुपए तक जा सकता है। अब यहाँ पे एक कैच है जिसको ध्यान से सुनना। ठीक है, जहाँ पे एक कैच है थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने बताया कि सर मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस वैसे कितना है जी? 5 लाख रुपए का अंडर दी सुपरविजन ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। अगर उससे ऊपर जाएगा तो मैटर जो है मिनिस्ट्री को रेफर करेंगे। मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद जो मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सकता है वो कितना हो सकता है? 15 लाख रुपए। ठीक बात है, ये बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट दिस इज फॉर फर्स्ट कंपोनेंट एंड दी सेकंड कंपोनेंट, आरएएन एंड हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड के लिए। जो थर्ड कंपोनेंट था, थर्ड कंपोनेंट में सरकार ये कहती है
कि भैया नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के हिसाब से हम जो है मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस 20 लाख रुपए तक का देंगे अगर कोई रेयर डिजीज का केस आता है। समझ में आया? अब भैया इसका प्रॉब्लम ये है कि अब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस परमिसिबल अंडर आरएएन, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, आंसर है 15 लाख। अगर उसको रेयर डिजीज का पूछना होगा ना तो वो स्पेशली लिखेगा रेयर डिजीज, तो इन दैट केस द आंसर वुड बी 20 lakhs। समझ में आया? और एक और कैच है, एक और कैच है, एक और कैच क्या है, अगर कोई बीपीएल पेशेंट है जो कि ऑलरेडी आयुष्मान भारत का बेनिफिशियरी है तो वो तो एलिजिबल नहीं होगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर कंपोनेंट 1 and 2। लेकिन अगर उसको कोई रेयर डिजीज हो जाती है, अगर उसको कोई रेयर डिजीज हो जाती है और अगर उसको 20 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है तो इन दैट केस थर्ड कंपोनेंट के अंदर उसको बेनिफिट मिल जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? कंफ्यूजन तो नहीं हो गई? अरे बोलो, ये समझ में आ गया लास्ट वाला पॉइंट? यस और नो बता दो। अरे बोलो, अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो ठीक है जी। तो ये है बस राष्ट्रीय आरोग्य निधि, बस इसमें इतना ही पढ़ना और ये है इसका माइंडनॉम। ये डाउनलोड करो और जल्दी से इसको रिवाइज करो। ठीक है जी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, so you guys can scan this QR code, join the Telegram channel and get the PDF. And don't forget to subscribe to your channel because this is your channel and it is your responsibility to take it forward. Only then we'll be able to provide you the premium content for all the regulatory bodies examination, my dear friends. ठीक है जी। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज गिव मी थम्स अप। All right, let's find it up. I'll see you in the next class. That is on Friday. Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care, and God bless.